Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Mrs. Vaijayanti Patil, Assistant Professor. Dear students, today we are going to study 11th Standard English subject. Onto the summit, we reach the top. This is the topic written by Tenzing Norgay and we are going to study the first part of this chapter. On to the summit, we reach the top, which is written by Nepali Indian writer, that is Tenzing Norgay. So you can see the picture of Tenzing Norgay here, and the second picture we can see Tenzing Norgay as well as Edmund Hillary. These are the two persons who reached the summit of the Mount Everest, the highest mountain in the world. So this is the experience Tenzing Norgay has described in this chapter, which they came across while reaching the summit of Mount Everest. So first of all, we will see a little bit information about our writer, that is Tenzing Norgay, who was born in 29th May 1914 and he lived up to 9 May 1986. Who was known as by birth as a Namgyal Wangdi and often referred to as Sherpa Tenzing. He have two nicknames, that is Namgyal Wangdi and the second one is Sherpa Tenzing. He was a Nepal Indian Sherpa mountaineer and he was one of the first two individuals known to reach the summit of Mount Everest, which he accomplished with Edmund Hillary on 29th May 1953. तो इन दोनों ने मिलकर एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे इन दोनों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहले अपनी जो चढ़ान थी वो कंप्लीट की थी. वो दोनों पर्सन जो फर्स्ट बोथ ऑफ देम थे कि माउंट एवरेस्ट पे पहला पैर उन्होंने रखा था. सो टेंजिंग नॉर्गे हैज गॉट मेनी अवार्ड्स. द फर्स्ट वन इज टाइगर मेडल. He was got in 1938 and which was honored by Himalayan Club for his third Everest expedition. And the second award he has got Star of Nepal. In 1953, who was given by King Tribhuvan for his all accomplishment. And the third award he has got from the government of India in 1959, that is Padma Bhushan, for his all accomplishment. So these are the awards got Tenzing Norgay for his achievements. Here in this chapter, Tenzing describes the climb to the top and all events occurred during the historic climb. The article also describes what brought him to climbing mountains. The experiences he was gone through the this mountaineer expedition he has described for this chapter. We will see it in detail. So this is the first part we are going to study now. So on to this summit we reach the top. This is the first paragraph. When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. That morning I remember thinking I was to get to the top even if I die. I was not afraid to die that day. We set out early and all the way from Camp 9 to the peak we alternated. Here in this first paragraph, Tenzing Norgay is describing his determination. वो क्या कहता है कि जब मैं कैंप 9 में रुका था फ्राइडे मॉर्निंग के लिए और उसी दिन वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ान करने वाले थे कंप्लीट, तो उसी वक्त उन्होंने ठान लिया था कि चाहे उनको मौत भी क्यों ना आ जाए लेकिन वो उनके रास्ते से बिल्कुल भी हटने वाले नहीं थे. कितनी भी डिफिकल्टीज उनको फेस क्यों ना करने पड़े, लेकिन वो 6 अटेम्प्ट्स उन्होंने एक्चुअली ट्राई किए थे माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे थे. सो इस वक्त उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कौन सी भी सिचुएशन क्यों ना आए, चाहे मुझे मौत भी क्यों ना आए, मैं ये जो चढ़ान है या एक्सपीडिशन है वो कंप्लीट करके ही रहूँगा. तो इन्होंने अल्टरनेटेड का इतना मतलब दिया है चेंज्ड प्लेसेस. एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे वेर चेंजिंग देयर प्लेसेस, isn't it? So the second paragraph, I would take the lead and then Hillary. दोनों मिलके उनकी जो पोजीशन थी वो चेंज कर रहे थे. कभी एडमंड हिलरी आगे जा रहे थे, कभी टेंजिंग नॉर्गे आगे जा रहे थे. The man who follows when climbing has a difficult job both in climbing up and climbing down. जो भी ऊपर चढ़ना हो या नीचे उतरना हो, दोनों का भी डिफिकल्ट जॉब रहता है और दोनों के लिए भी उतना ही खतरा रहता है. He is the anchor. He is the anchor. A word
इसके लिए यूज किया है, एडमंड हिलरी के लिए यूज किया है। एंकर क्या करता है, इधर एंकर जो है वो आपकी पोजीशन को स्ट्रांग बना देता है, आप उसके सहारे से ऊपर जा सकते हो। सो हियर टेंजिंग नॉर्गे इज डिस्क्राइबिंग एडमंड हिलरी एज एन एंकर, द मैन गोइंग इन द लीड कट्स द स्टेप्स एंड ब्रेक्स द वे। एडमंड हिलरी जो थे वो उनके आगे जो भी रास्ता डिफिकल्ट आ रहा था या शायद रास्ता बनाना पड़ता था, तो उसके लिए वो भी हेल्प कर रहे थे, एज वेल एज टेंजिंग नॉर्गे आल्सो। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ माउंट एवरेस्ट आल्सो। Then second paragraph, in my pocket I had 4 flags. टेंजिंग नॉर्गे के पॉकेट में 4 नेशंस के फ्लैग्स थे। When we were still at Camp 4, Colonel Hunt gave me 3 flags, those of Britain, the United Nations and Nepal. He charged me with the duty of planting them on the top of the world. क्या हुआ था, कर्नल हंट जो 3rd पर्सन हमें इधर नजर आते हैं, वो लीडर थे इस एक्सपीडिशन के। तो उन्होंने टेंजिंग नॉर्गे के इधर 3 नेशंस के झंडे दिए थे उधर गाड़ने के लिए या प्लेस करने के लिए। उनमें से ब्रिटेन का एक था, यूनाइटेड नेशन का भी था, एज वेल एज नेपाल का भी था। लेकिन जो 4th वन इधर वो रेफर कर रहे हो किसका था, लेट्स सी। These 3 flags are in your care, he said. कर्नल हंट उनको बोले कि मैं आपके इधर सौंप रहा हूँ या दे रहा हूँ। When you and Hillary reach the top, put them at the peak. तो जब भी आप एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे आप माउंटेन एवरेस्ट पे जाओगे, पहला कदम आपका उधर रहेगा, तो उस वक्त उनको ये जो झंडे उधर गाड़ देना। आई एम श्योर दैट यू एंड हिलरी आर गोइंग टू डू इट। और मुझे बिल्कुल अश्योर है या मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि किसी भी तरीके से ये आपकी जो एक्सपीडिशन है वो कंप्लीट करने में सक्सेसफुल रहोगे। सो कर्नल हंट इधर आप देख सकते हो, टेंजिंग नॉर्गे जो झंडे 3 नेशंस के वो लेके गए थे, उनके साथ और भी एक नेशन का झंडा था, वो किसका था ये भी इस पैराग्राफ में देखेंगे। आई टोल्ड कर्नल हंट दैट आई वाज कैरिंग द इंडियन फ्लैग विथ मी एंड आई वुड लाइक टू बी ऑन द टॉप विद द अदर फ्लैग्स। In this paragraph we can see the patriotism of Tenzing Norgay, isn't it? Because किसी भी ने उनको ये नहीं कहा था कि आप इंडिया का फ्लैग आपके साथ लेके जाओ, लेकिन इधर उनके माइंड में जो नेशनलिज्म था या पैट्रियटिज्म थी या देशभक्ति थी भारत के लिए, वो भी इधर हमें दिखाई देती है। क्योंकि कर्नल हंट ने तो उनको 3 झंडे दिए थे, 3 फ्लैग्स दिए थे 3 नेशंस के, लेकिन टेंजिंग नॉर्गे ने अपने आप उनके साथ इंडिया का भी फ्लैग कैरी किया था। तो इधर वो कर्नल हंट को क्या बोल रहे हैं कि मैंने मेरे साथ इंडिया का भी फ्लैग मैं लेके आया हूँ, जब भी मैं माउंट एवरेस्ट पे मेरा पहला कदम रखूंगा उस वक्त इंडिया, ब्रिटेन, नेपाल एंड यूनाइटेड नेशन के जो 4 फ्लैग्स है उधर प्लेस कर दूंगा या गाड़ दूंगा। सो आई हैड टू आस्क कर्नल हंट्स परमिशन इन हिज कैपेसिटी एज अ लीडर ऑफ द एक्सपीडिशन। तो उनको ये भी फॉर्मेलिटीज वो कंप्लीट करना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि कर्नल हंट उनको ये परमिशन दे दे कि वो इंडिया का जो फ्लैग है वो भी उनके साथ लेके जाए। सो इंडियन फ्लैग, कर्नल हंट सेड, बाय ऑल मीन्स आई एम ग्लैड टू नो दैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग। तो कर्नल हंट भी बहुत हैप्पी हो गए कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया कि आपके साथ इंडिया का भी फ्लैग आप लेके आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उधर इंडिया का फ्लैग भी लगा सकते हो या प्लेस कर सकते हो। आफ्टर 1 hour of steady going, we cut across from the south face and started up the west side where we had to pass up a steep line of rocks. This was slow and difficult. Once we had cleared these, there was nothing barring our way to top but a snow-covered incline, sloping less and less as it neared the top. इधर अभी टेंजिंग नॉर्गे उनकी जो रास्ता है वो कितना डिफिकल्ट है या कैसा है इसके बारे में इधर हमें बता रहे हैं। तो उन्होंने उनकी जो शुरुआत की थी चढ़ान के लिए या एक्सपीडिशन कंप्लीट करने के लिए, तो साउथ एंड से की थी, और ये जो रास्ता था थोड़ा डिफिकल्ट था उनके लिए, तो उनको स्लोली और बहुत कॉशियसली जाना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, वो रास्ता थोड़ा सा क्लियर कर दिया और बहुत ही सावधानी से वो रास्ता वो क्लियर कर रहे थे दोनों मिलके। थोड़ा स्लोपिंग लेस एंड लेस एज नियर द टॉप, धीरे धीरे करके उन्होंने जो डिफिकल्ट रास्ता था वो भी कंप्लीट करवाया। द स्लोपिंग का मतलब दिया है स्लैंटिंग अप और डाउन। देन द नेक्स्ट पैराग्राफ, these last 60 or 70 feet up to the top
वेर नॉट वेरी डेंजरस, मतलब माउंट एवरेस्ट के ऊपर का जो भी डिस्टेंस था 60 और 70 फीट का, वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन उसके पहले का जो डिस्टेंस था वो बहुत डिफिकल्ट था उनको क्रॉस करने के लिए. बट वी केप्ट अप द सेम स्टडी पेस, लेकिन उन्होंने वो अच्छी तरीके से मेंटेन किया, वो भी अच्छे से चढ़ान करने के लिए. एंड वी रीच द स्मॉल फ्लैटन समिट ऑलमोस्ट टुगेदर. तो एडमंड हिलरी एज वेल एज टेंजिंग नॉर्गे, इन दोनों ने मिलके ये जो रास्ता था वो अच्छे से सावधानी से क्लियर कर दिया. During the last 50 feet from the peak, Hillary and I were moving about 20 feet apart. तो लास्ट 50 फीट का जो डिस्टेंस था, तो दोनों के बीच में कितना फासला था? खाली 20 फीट का फासला था. We were tied together with a rope. Most of the time the rope was loose, but when we went over dangerous ground, we drew it taut. Now what happened? दोनों ने मिलके एक दूसरे को एक रोप से, एक रस्सी से बांध रखा था, ताकि सपोज किसी का भी बैलेंस नीचे गया तो दूसरा उसको अच्छे से संभाल लेगा. ये जो कॉशियस उनको बरतनी पड़ती थी, तो उधर इन्होंने मेंटेन की थी. तो कभी कभी वो जो रस्सी थी या रोप था, वो कभी कभी ढीला होता था और कभी कभी टाइट होता था. एक दूसरे को अच्छे से संभाल कर ये जो चढ़ान थी वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे. तो इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में जो भी टीम वर्क जो था वो अच्छे से वो निभा रहे थे और कर रहे थे. दिस रोप वॉज अ सिंबल, एक किसका सिंबल था, एक किसका प्रतीक था? इट टाइड अस टुगेदर. दो उस रस्सी ने हम दोनों को एक साथ बांध के रखा था. वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर, एक के सिवा दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता था. तो सपोज कोई पीछे रह गया तो आगे वाला भी और आगे नहीं जा सकता था. तो दोनों मिलके, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो बहुत कम था, खाली 20 to 15 फीट इतना ही था. वी वर नॉट टू इंडिविजुअल्स बट अ टीम. वो दोनों मिलके, वो दोनों अलग व्यक्ति नहीं थे, वो दोनों अलग पर्सन नहीं थे, लेकिन वो एज ए टीम थे जो दोनों मिलके माउंट एवरेस्ट की चढ़ान जो थी वो कंप्लीट करने में लगे हुए थे. सो नेक्स्ट पैराग्राफ. आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, उनको बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट. मतलब बहुत सारे फैंस थे, बहुत सारे ऑडियंस थे, तो बहुत बार उनकी ये मतलब ये क्यूरियोसिटी होती थी कि किसने पैर पहला रखा माउंट एवरेस्ट पे. मे बी टेंजिंग नॉर्गे ने रखा या एडमंड हिलरी ने रखा. When we were within reach of the summit, I did not think of who was going to be the first. I am sure that Hillary was not thinking that. Climbing takes all your attention. You have many more important worries. लेकिन इधर जो चाइल्डिश क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन पहला था, माउंट एवरेस्ट पे पहला कदम रखने वाला कौन पहला था आदमी, टेंजिंग नॉर्गे थे या एडमंड हिलरी थे. तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, साइड में रखते हैं. वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे लिए एक क्वेश्चन जो था इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, और शायद एडमंड हिलरी के भी लिए नहीं रखता होगा, क्योंकि हमारे माइंड में अदर भी बहुत क्वेश्चंस थे वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इससे. What does it matter whether I reach the top first or Hillary? ये क्या फर्क पड़ता है? मे बी टेंजिंग नॉर्गे ने पहला कदम रखा होगा या हिलरी ने रखा होगा. Our main thought was that both of us reach the top. हमारा मेन इंटेंशन क्या था कि हम दोनों मिलके माउंट एवरेस्ट के शिखर पर या समिट पे जाएंगे. We had to, one couldn't do it alone. और हमने वो कर दिखाया था. और ये जो काम था या एक्सपीडिशन जो था वो किसी एक का काम नहीं था, दोनों ने मिलके कंप्लीट किया था. तो दोनों का भी सेम इंपॉर्टेंस था. तो एक क्वेश्चन बहुत ही इनवेन है कि किसने पैर पहला रखा. If there had been a difference of 1000 feet between us, one could make the claim that he was first. But even then, only the man behind him could confirm that distance between the two of them. सपोज हमारे बीच में 1000 फीट का डिस्टेंस रहता तो शायद इस क्वेश्चन को कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर हो जाता, लेकिन हमारे बीच में कितना डिस्टेंस था, खाली 15 to 20 फीट का डिस्टेंस था. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है उनके लिए. और भी एक सिचुएशन ऐसी होती थी कि हमारे पीछे और एक व्यक्ति होता कि जो शायद ये देख पाता कि कौन आगे था कौन पीछे था और किसने पहले कदम रखा, तो शायद वो डिसाइड कर सकता था. लेकिन कभी कभी एडमंड हिलरी आगे जाते थे, कभी कभी टेंजिंग नॉर्गे आगे जाते थे. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही चाइल्डिश है कि किसने पहले कदम रखा था. So we have seen till page number 17. We will see the second part of this chapter in the next video. Till then, thank you.